Friends, let's continue with the third case. In AC circuit, we started with the generation of AC voltage. Then we had taken the AC circuits in which very first we took with only R. Next we took with only L, then only resistor, only inductor. Now we are taking the case of AC circuit with only C and only capacitor. So let's see what happens when an AC source is connected to a capacitor. Now let's suppose there's an AC source with voltage V equal to Vm sin omega t. As per tradition, we continue with this sin omega t. We connect this AC source with a capacitor. Let's say plate A and plate B are the two plates of capacitor. A capacitor, let's say having capacitance C, plate A, plate B. Now, when we connect this, then according to Kirchhoff's loop rule, we have the formula V plus Vc equal to 0. Total potential always 0. Now, V is Vm sin omega t. Vm sin omega t plus Vc, potential difference across capacitor. So capacitance का formula C equal to Q by V, so V will be equal to Q by C. So here it will be Q by C equal to 0. Taking this on the left side, so they were making Q the subject of formula. Sorry, it is minus V by Vm sin omega t upon C. Sorry, this will be, let's go step by step. It's Q by C equal to negative Vm sin omega t. So Q will be equal to minus C Vm sin omega t. Okay. Now we want the formula for current, तो उसके लिए differentiating with respect to time. So what we get is dq by dt is equal to minus C and Vm is constant, d by dt of sin omega t. So here what we get is dq by dt means current I, left side पे, is equal to minus C Vm sin omega t का differentiation will be cos omega t into omega. So this will be equal to minus omega C Vm cos omega t. Okay, this is what we get. Now here cos omega t can be written as minus sine of pi by 2. Sorry, cos omega t will be equal to sine of pi by 2 plus omega t. बराबर है, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, बराबर, एंड एक माइनस साइन और आ जाएगा. सो देयरफॉर व्हाट वी गेट इज आई इज इक्वल टू ओमेगा सी वीएम साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी. ना प्लस है तो आगे पीछे कर सकते हैं, तो दिस विल बी ओमेगा सी वीएम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. नाउ राइटिंग इट इन दिस मैनर, वीएम अपॉन, और लेट्स कॉल दिस एज आई एम sin omega t plus pi by 2. ओके, ये करंट का फॉर्मूला हो गया, where Im is omega c into Vm, or we can write this Vm upon 1 by omega c. Okay, now Im current is voltage upon something and resistance हो गया. resistance कौन ऑफर कर रहा है यहाँ पे? ये कंपोनेंट इज ड्यू टू कैपेसिटर ओमेगा सी, बराबर है. तो यहाँ पे कैपेसिटर ने जो रेजिस्टेंस ऑफर किया वो, ना कैपेसिटर कैन नॉट ऑफर रेजिस्टेंस. कैपेसिटर इज वन हु स्टोर्स द चार्जेस एंड डिस्चार्जेस, एंड व्हेन रिक्वायर्ड इट डिस्चार्जेस एंड गिव्स द करंट. तो कैपेसिटर इज नॉट एक्चुअली रेजिस्टर, इट डज नॉट अपोज द करंट, डज नॉट लिमिट द करंट. पर यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा सी, अ टर्म कनेक्टेड टू कैपेसिटेंस, इज टेकिंग द प्लेस ऑफ रेजिस्टर. तो ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? तो 1 अपॉन ओमेगा सी इज कॉल्ड एक्सी, and that's called X is 1 upon omega c, and that's called capacitive reactance. It's a resistance offered by capacitor, but actually not a resistance. इससे नाम दिया reactance. Actual resistance नहीं है, इससे नाम दिया reactance.
आगे इंडक्टर में भी दिया था, वैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला था, यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, तो इसका यूनिट भी हो जाएगा ओम। ओके, वैल्यू इसका डिपेंड्स, इसको यूं भी लिख सकते हैं 1/2 पाई एफ सी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स एंड कैपेसिटेंस दोनों से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये एक्सी हो गया, तो दिस विल बी वीएम अपॉन एक्सी। ओके, तो करंट का फॉर्मूला ये आ गया, वोल्टेज का फॉर्मूला ये रहा, दोनों को कंपेयर करो तो सी V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, वाइल I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इंडक्टर में माइनस पाई बाई टू आता था, यहाँ प्लस पाई बाई टू आ रहा है, मतलब क्या हो गया, पाई बाई टू जितना प्लस हो गया, यानी कि करंट का फेज ओमेगा टी प्लस समथिंग, वोल्टेज के फेज से प्लस समथिंग, यानी करंट का फेज ज्यादा है, इससे करंट आगे चलेगा, वोल्टेज पीछे चलेगा, जिसका फेज कम हो वो पीछे चलता है, जिसका फेज ज्यादा हो आगे चलेगा। इंडक्टर में क्या था, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू था, तो इंडक्टर में करंट वाज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज, तो यहाँ क्या बोलेंगे, वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड करंट, बट आवर रेफरेंस इज नॉर्मली द वोल्टेज, इसमें हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, thus current leads voltage in phase by pi by 2 radian, यानी करंट लीड्स, करंट आगे आगे, वोल्टेज पीछे पीछे। ओके, अब इसको ग्राफिकली कैसे बताते हैं वो देख लेते हैं। यह ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, V एंड I वर्सेस टाइम का। ओके, वोल्टेज के लिए हमने क्या लिया, साइन लिया ना, तो वोल्टेज के लिए साइन यानी 0 से शुरू होगा, साइन वाला ग्राफ 0 से शुरू होता है, ये वोल्टेज का ग्राफ हो गया। करंट लीड्स वोल्टेज, करंट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है, पाई बाई टू जितना फेज ज्यादा है। फर्दर यूं देखो तो वैसे तो करंट में कॉस ओमेगा टी चल रहा है, जिसको हमने कन्वर्ट किया था साइन के फॉर्म में, तो कॉस का ग्राफ कैसा होगा, पीक पहले आया, इससे पहले पीक आया, आगे वाले में लास्ट था, इंडक्टर में पीछे था, यहाँ आगे ना, हियर द ग्राफ ऑफ करंट विल गो लाइक दिस, वोल्टेज के पीक से पहले करंट का पीक, वोल्टेज 0 होने से पहले करंट 0 होगा, यानी करंट लीड्स वोल्टेज लैग बिहाइंड, ये वोल्टेज का ग्राफ है, ये करंट का ग्राफ है। बी वेरी केयरफुल, जब हाँ पाई बाई टू का फेज डिफरेंस मतलब क्या हुआ, जब वोल्टेज मैक्सिमम तब करंट 0, जब वोल्टेज 0 तब करंट मैक्सिमम, वोल्टेज 0 तब करंट मैक्सिमम। ओके, तो ग्राफ ड्रॉ करते खास ध्यान रखें, जब वोल्टेज मैक्सिमम हो तब करंट 0, एंड जब वोल्टेज 0 हो तब करंट मैक्सिमम, ये खास ध्यान रखें। तो ये हो गया ग्राफ वोल्टेज एंड करंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग कैपेसिटेंस, व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट, when only capacitor is connected in the circuit, current leads the voltage. Okay, इंडक्टर के केस में करंट लैग्स बिहाइंड था, इसमें करंट लीड्स। यहाँ साथ साथ में एक और चीज इंट्रोड्यूस कर दी, कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड इट इज गिवन एज 1/ओमेगा c। आगे इंडक्टर में ओमेगा इनटू L था, व्हिच वाज इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये रेजिस्टेंस का काम करे, इसलिए इसका यूनिट भी ओम है। You can using dimensional formula you can prove dimensional equation 1/ओमेगा c is same as ohm. Okay, तो ये आप कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स रिगार्डिंग करंट का फॉर्मूला। नेक्स्ट वी गो ऑन फॉर पावर डिसिपेटेड इन केस ऑफ दिस सर्किट। चलो इस सर्किट में कितना पावर कंज्यूम होता है उसका फॉर्मूला लेते हैं। तो फॉर कैपेसिटर, फॉर ओनली कैपेसिटर द वोल्टेज अप्लाइड इज Vm sin omega t and the current obtained is Im, instantaneous current Im sin omega t plus pi by 2। अब पावर की बात करें तो पावर कंज्यूम इन दिस सर्किट पीसी बोलते हैं, पीएल बोला था पावर इन केस ओनली इंडक्टर, ये पीसी बोलेंगे पावर इन केस ओनली कैपेसिटर। नाउ पीसी विल बी वी इनटू आई, इलेक्ट्रिसिटी में करंट पावर का फॉर्मूला वी इनटू आई है, वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज का फॉर्मूला वीएम साइन ओमेगा टी, करंट का फॉर्मूला आईएम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। नाउ दिस विल बी वीएम इनटू आईएम sin of omega t into sin of omega t plus pi by 2. Now this sin omega t plus pi by 2 will come out to be cos omega t। ये टर्म हो गया cos omega t, तो इसको cos omega t लिख देते हैं। तो this we can further write it as Vm Im by 2 into twice sin omega t cos omega। Multiply and divide by 2 किया हमने, we have done multiply and divide by 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब ये तो क्या साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, तो वी एम आई एम बाई 2
साइन ऑफ ट्वाइस ओमेगा टी, या वही फॉर्मूला है साइन 2 थीटा इज टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आ गया ना। ये पावर का वैल्यू कंटिन्यूसली वेरी होगा क्योंकि इस टाइम के साथ में वेरी होगा पीरियोडिकली। तो एवरेज पावर फॉर द होल साइकिल, एवरेज पावर ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल कितना आएगा वो देखते हैं। तो PC इज इक्वल टू, सॉरी एवरेज वैल्यू चाहिए, तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन केस ऑफ ओनली कैपेसिटर विल बी VmIm बाई 2 द कांस्टेंट है एवरेज लेने का साइन का, एवरेज ऑफ साइन ऑफ ट्वाइस ओमेगा टी, ओके, बट दिस कम्स आउट टू बी 0। साइन की एवरेज, साइन थीटा की एवरेज वैल्यू तो 0 होती है ओवर वन कंप्लीट साइकिल, सो दिस विल बी 0। तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन केस ऑफ कैपेसिटर इज ऑलवेज 0। इंडक्टर में था वैसे ही, यानी यहाँ पे भी कैपेसिटर लिमिट्स द करंट, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ऑफरिंग रिएक्टेंस, तो लिमिट्स द करंट विदाउट कंज्यूमिंग एनी पावर, इट लिमिट्स द करंट विदाउट कंज्यूमिंग एनी पावर। क्लियर अबाउट दिस? यानी यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेम एज इंडक्टर, you can use only AC circuit. AC circuit is only capacitor in order to limit the current, control the current without any power loss. बराबर है? Clear about this? अब यहाँ पे कैपेसिटर के केस में कैसे वर्किंग होता है ड्यूरिंग द AC साइकिल, वन कंप्लीट AC साइकिल, वो हमने देखना है नेक्स्ट टॉपिक में। जैसे हमने इंडक्टर में देखा था वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे कैपेसिटर के केस में भी देखना है। फिर से एक बार टेक्स्ट बुक ले लीजिए, इंडक्टर से थोड़ा आगे फिर से एक बार वही पूरा फुल पेज आएगा रिगार्डिंग कैपेसिटर का, हम लोग वो स्टडी कर रहे हैं। Now let's see what happens during one complete AC cycle when only capacitor is connected. तो उसके लिए आपको मैंने बोला बुक के अंदर पेज नंबर 243 है जिसपे ये पूरा दिया हुआ है, जैसे इंडक्टर के केस में दिया था वैसे ही यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो बीच में सेंटर में यू आर गिवन अ ग्राफ जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है। अब ग्राफ में देखो हमने थियरी में पढ़ा था वोल्टेज V इज Vm साइन ओमेगा टी, वोल्टेज के लिए साइन फंक्शन लिखा था। तो वोल्टेज का अगर ग्राफ बनाए तो 0 से शुरू होगा, साइन 0 इज 0 इसलिए बराबर है। पर यहाँ पे जब फिगर में बताया तब अपने जैसे इंडक्टर के केस में बात की थी वैसे ही यहाँ पे हुआ है, टेक्निकल एरर है, थोड़ा एरर तो नहीं पर थोड़ा अलग लिया है। यहाँ पे Vm cos ओमेगा टी से शुरू किया, Vm cos ओमेगा टी लिया, यानी शुरुआत मैक्सिमम से हो रही है। क्लियर? इतना फर्क है। थियरी हमने पढ़ी Vm sin ओमेगा टी को ध्यान में रखे, पर ये जो फिगर दिया है वो Vm cos ओमेगा टी को ध्यान में रखे दिया हुआ है। तो इससे यहाँ मैक्सिमम से शुरू है वोल्टेज का ग्राफ, बराबर है। अगर ये वोल्टेज कॉस है तो फिर करंट साइन आएगा, इससे करंट 0 से शुरू हुआ। ओके, सो दैट्स द केस। अब यहां पे देखें तो वोल्टेज एंड करंट, पहले 0 से 1 के बीच में वोल्टेज पॉजिटिव, करंट भी पॉजिटिव, बराबर है, करंट भी पॉजिटिव। इससे क्या होगा, यहाँ पे पावर विल बी पॉजिटिव, देयरफॉर कैपेसिटर चार्जेस, कैपेसिटर चार्जेस। एक मिनट, सॉरी, ये वोल्टेज का ग्राफ है, ये करंट का ग्राफ है। तो वोल्टेज पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव, पीसी पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव, कैपेसिटर चार्जिंग हो रहा है, चार्जेस। और कैपेसिटर चार्ज हो रहा है मतलब क्यू विल बी रिड्यूसिंग, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो देयरफॉर क्यू इंक्रीजिंग, कैपेसिटर पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है। ओके, यानी कि सर्किट में करंट रिड्यूसेस, यहाँ पे करंट डिक्रीज हो रहा है, बिकम 0, बराबर है। करंट रिड्यूसेस एंड बिकम 0, क्यों? क्योंकि चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीज, यानी ये चार्जिंग वाला केस हो गया। पहला पार्ट है कैपेसिटर इज गेटिंग चार्ज्ड। सपोज करते हैं पॉजिटिव, ए प्लेट पॉजिटिव बन रही है, करंट का डायरेक्शन ऐसा बताया हुआ है, ए पॉजिटिव एंड बी प्लेट विल बी नेगेटिव, इसको ध्यान में रख के चार्जिंग हो रहा है। ओके, फिर 1 से 2 के बीच में देखें तो यहाँ पे भी करंट पॉजिटिव है पर वोल्टेज, सॉरी, करंट नेगेटिव, वोल्टेज पॉजिटिव, V इज पॉजिटिव, करंट नेगेटिव, देयरफॉर पावर विल बी नेगेटिव। पावर नेगेटिव हो मतलब क्या, कैपेसिटर डिस्चार्जिंग, ये डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होगा, यानी कैपेसिटर ने जो एनर्जी ली थी इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में वो वापस सोर्स को सप्लाई वापस दे रहा है, इसलिए यहाँ पे पावर नेगेटिव है। पावर नेगेटिव मतलब द डिवाइस, द कंपोनेंट इज प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सोर्स, यानी पावर नेगेटिव। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे, कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग, क्यू इज डिक्रीजिंग,
and therefore current again reducing. Current continues to reduce. In an opposite, sorry, capacitor discharging, current, sorry, charge increasing, charge decreasing, and current reducing. ओके ये सेकंड में करंट रिड्यूस हो रहा है, सॉरी यहाँ करंट रिड्यूस हो रहा है. क्लियर. फिर चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन में 2 to 3. 2 to 3 में फिर से V नेगेटिव, I ऑल्सो नेगेटिव, पावर अगेन पॉजिटिव, यानी कि फिर चार्जिंग शुरू हुआ. ये फिर से चार्जिंग वाला प्रोसेस हो गया. पर चार्जिंग कैसा, पावर इज पॉजिटिव और करंट नेगेटिव, मतलब उल्टा चार्जिंग. बी प्लेट यहाँ ए पॉजिटिव, उसका जब बी पॉजिटिव बनेगा एंड ए विल बिकम नेगेटिव, उल्टा चार्जिंग हो गया. एंड फोर्थ में V इज अगेन नेगेटिव, I is positive, power negative, and therefore capacitor again discharging and energy provided back to the AC source. यानी एनर्जी अब्जॉर्ब करता है सोर्स से, फिर सोर्स को एनर्जी वापस देता है, फिर वापस देता है, फिर वापस देता है, एंड सो ऑन. द एनर्जी ट्रांसफर्स बिटवीन सोर्स एंड द कंपोनेंट दैट्स कैपेसिटर. एनर्जी ट्रांसफर्स फ्रॉम कैपेसिटर टू द सोर्स, सोर्स टू कैपेसिटर, डज नॉट गेट डिसिपेटेड आउट. इसलिए पावर लॉस जीरो होता है यहाँ पे. क्लियर अबाउट दिस. तो ये चारों चार फिगर में समझाया हुआ है. फिगर नो डाउट नोट्स में भी दिया हुआ है सेम फिगर. ओनली थिंग इज नोट्स में थोड़ी छोटी साइज के फिगर, इससे शायद जल्दी मेकआउट ना हो, तो रिफर टू द पेज नंबर 243 इन द टेक्स्ट बुक. ओके, सो दैट कंप्लीट्स द कंसेप्ट ऑफ एसी सर्किट ओनली कैपेसिटर. ये हमने क्या क्या तीन अलग अलग लिया, ओनली आर लिया, ओनली एल लिया, ओनली सी लिया. बराबर है. अब अगला टॉपिक ऐसा रहेगा कि तीनों तीन को एक साथ एल सी आर ऑल द 3 सीरीज वो हमें स्टडी करना है. Friends, now let's continue and let's take the concept of phase. Phasor. Now phasor actually क्या चीज है? तो phasor is a way of representing harmonic functions. It's a method of representing harmonic functions. And ये method क्यों ले रहे हैं? ये method is more easier to deal with harmonic functions. अब तुम बोलोगे harmonic function क्या होता है? Harmonic function वो है जिसके अंदर वेरिएशन, ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन टाइप. तो सर वो 11 में क्या था, चैप्टर 14 and 15 उसके जैसा ही. हाँ, 14 चैप्टर में वी हैड टेकन SHM. SHM इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसको रिप्रेजेंट करेगा, फेजर बन जाएगा. वेव्स वर बेस्ड ऑन द सेम थिंग, तो भी फेजर बनेंगे उसके. तो फेजर बेसिकली है क्या चीज? तो फेजर इज नथिंग बट इट्स अ वेक्टर रोटेटिंग विद फेज, यानी फेज पे बेस्ड वेक्टर जो रोटेट होता है. तो मतलब वेक्टर रोटेट क्यों? तो देखें, ये ग्राफ बनाया हमने x y. अच्छा, हमारे पास एक फॉर्मूला है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या फिर y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. बराबर. ये दोनों, ये SHM का इक्वेशन, ये वेव का इक्वेशन. यहाँ पे इसको हम लोग फेज बोलते हैं. सो दिस कैन जनरली बी रिटन एज a साइन थीटा, वेयर थीटा इज द फेज, वेयर थीटा इज द फेज एंड a इज एम्पलीट्यूड. बराबर है. अब ये थीटा फेज की बात करो तो पहले केस में इट्स ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी चेंजिंग विद टी. दूसरे केस में इट्स ओमेगा टी माइनस के एक्स, अगेन चेंजिंग विद टाइम. अब अगर इस हार्मोनिक फंक्शन को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ कैसा बनेगा? वी हैव टू ड्रॉ वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन. वेक्टर यूं बनाया, इस वेक्टर का लेंथ इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड एंड एंगल विद एक्स एक्सिस इज इक्वल टू थीटा, एंड थीटा इज ओमेगा टी प्लस फाइव. ओके, तो वी आर रिप्रेजेंटिंग अ हार्मोनिक फंक्शन यूजिंग अ वेक्टर फॉर्म. वेक्टर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओरिजिन से ड्रॉ कर रहे हैं उसे. वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रखेंगे? इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द हार्मोनिक फंक्शन, एम्पलीट्यूड जितना, और एंगल कितना होगा एक्स के साथ उसका, तो फेज थीटा. ओके, जहां जो पहले केस में ओमेगा टी प्लस फाइव, दूसरे केस में ओमेगा टी माइनस के एक्स है. राइट. सो दिस वेक्टर इज ड्रॉन फॉर दिस हार्मोनिक फंक्शन. दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स हार्मोनिक फंक्शन. हम तो जानते हैं कि टाइम, घड़ी कभी रुकने वाली नहीं है, समय हमेशा चलता रहता है. टाइम कंटिन्यूसली गोज अहेड, टी बढ़ता जाएगा. टी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली टी के साथ साथ थीटा इंक्रीज होगा. तो थीटा इंक्रीज होगा मतलब क्या होगा? ये वेक्टर कैसा होगा? जिसका फेज इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, तो वेक्टर यूं चलेगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. द वेक्टर विल बी कंटिन्यूसली मूविंग, इट विल बी रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, इट विल बी रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन. तो ये क्या हो गया? रोटेटिंग वेक्टर. इट बी अ रोटेटिंग वेक्टर. एंड क्यों रोटेट हो रहा है? बिकॉज ऑफ फेज.
अ वेक्टर रोटेटिंग विद फेज, या फिर इसको ही बोलेंगे फेज डिपेंडेंट रोटेटिंग वेक्टर। मैं तो इसे बोलेंगे फेज डिपेंडेंट रोटेटिंग वेक्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में फेजर बोलते हैं। सो फेजर इज नथिंग बट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग हार्मोनिक फंक्शंस। ओके, ये मेथड क्यों लेने का? क्योंकि दिस मेथड प्रूव्स टू बी मोर इजी टू एनालाइज द हार्मोनिक फंक्शंस। जैसे इलाम में हमने लिया था एक वेव y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, फिर इसका जो रिफ्लेक्टेड वेव था y2 इक्वल टू माइनस a sin ओमेगा t प्लस के एक्स, ऐसा लिया था। ये रिफ्लेक्टेड वेव था, दोनों को सुपरपोज करा तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 किया, दोनों में एम्पलीट्यूड सेम है इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक कॉमन निकल गया, साइन माइनस साइन हुआ था, इलाम में स्टेशनरी वेव्स को डिफाइन किया था। अगर ये a अलग अलग होता तो सपोज ये A1 है ये A2 बोथ आर डिफरेंट, तो कैसे सॉल्व करते हैं? कॉमन निकलने का तो कोई सवाल नहीं होता है, तो उस केस में हाउ टू सॉल्व इट, तो देयर बिकम्स वेरी टीडियस और कॉम्प्लिकेटेड है। तो देयर इट इज वेरी टफ टू एनालाइज दिस वन। पर अगर फेजर मेथड यूज किया हो तो यू कैन डू इट एनीवे। ये A1 है, थीटा 1 है, फिर दूसरा A2 थीटा 2 एंगल उसका, दोनों का ऐड कर दिया, एक का टेल दूसरे का, वेक्टर्स के मेथड यूज करो, इट इज नथिंग बट वेक्टर ओनली, तो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स विल बी अप्लाई एंड ये रिजल्टेंट वेक्टर तैयार हो गया। जो इधर सॉल्व करने में शायद 2-4 दिन निकल जाते हैं, 25-30 पेज भर जाते हैं, यहाँ पे एक सिंपल फिगर में काम हो गया अगर फेजर को यूज किया। तो फेजर इज एन अल्टरनेट मेथड टू सॉल्व द हार्मोनिक फंक्शंस। ओके, तुम बोलोगे ये सब बराबर है, पर यहाँ क्यों, व्हाई एट दिस पोजीशन? अरे यार ये हार्मोनिक फंक्शन है, याद करो हमारा सोर्स एसी सोर्स एंड उसके कारण सर्किट में मिलता हुआ करंट I इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इंडक्टर के केस में प्लस पाई बाई टू, प्लस और माइनस दोनों लिख देते हैं ताकि इंडक्टर कैपेसिटर दोनों भाग है। क्या है ये हार्मोनिक फंक्शन तो है, साइन या कॉस इन्वॉल्व किया मतलब हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन इनको सॉल्व, इनको एनालाइज करना हो तो फिगरेटिव मेथड बेस्ट है। आगे हम लोग देखेंगे मेथड दूसरे भी है, पर ये मेथड ज़्यादा इजी पड़ता है। तो फेजर के टर्म्स में बातें करते हैं, इसीलिए फेजर को यहाँ पे स्टडी करते हैं इन एसी सर्किट्स। तो इन एसी सर्किट फेजर गिव्स एन अल्टरनेट वे टू एनालाइज द सर्किट्स। ओके, तो चलो चलते हैं, हम लोग ने 3 सर्किट पढ़ी, उन तीनों पे अप्लाई करते हैं फेजर को। लेट्स अप्लाई फेजर, concept of phasor in the 3 circuits we have studied, which we have studied. पहला केस ओनली आर, V का फॉर्मूला Vm sin ओमेगा टी, I का फॉर्मूला Im sin ओमेगा टी, where Im is Vm by R, where Im is Vm by R, the Im की वैल्यू Vm से कम है, where Im is equal to Vm by R, यानी Im is smaller than Vm, ऐसा मान के चलते हैं। फेज दोनों का सेम है, तो अगर इसे रिप्रेजेंट करें एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ये है वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज को हमने रेफरेंस दिया है, सोर्स फिक्स है हमारे लिए, तो ये वोल्टेज होगा V इक्वल Vm sin ओमेगा टी, कितने एंगल पे ये, तो फेज ओमेगा टी। ओके, अब करंट की बात करें तो करंट एंड वोल्टेज बोथ आर सेम फेज, V एंड I, यहाँ पे बोलेंगे इस केस में V एंड I आर इन फेज, इन फेज मतलब सेम फेज वाले, आर इन सेम फेज, तो फिर I कहाँ बनेगा, ओमेगा टी, उसके लिए भी Im, तो ये हो गया फेजर फॉर रिप्रेजेंटिंग I। लेंथ इसका Im है, इसका लेंथ Vm है, दोनों ओमेगा टी एंगल पे, तो ये फेजर डायग्राम हो गया AC सर्किट टू ओनली R, ये AC सर्किट टू ओनली R का फेजर डायग्राम हो गया। I एंड V बोथ आर इन फेज, इसलिए साथ में बना दिया, ये I इन केस ऑफ ओनली रजिस्टर लिख देते हैं, बराबर, वोल्टेज तो फिक्स है, I इन केस ऑफ ओनली रजिस्टर। सेकेंड केस लेते हैं ओनली इंडक्टर वाला, V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, वेयर Im इज Vm अपॉन ओमेगा L, बराबर है। अगेन Im इज स्मॉलर देन Vm, फेज में देखो तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, हियर करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज इन फेज
बाय पाई बाई टू रेडियन। तो पाई बाई टू जितना पीछे चल रहा है करंट, पाई बाई टू जितना करंट पीछे चल रहा है वोल्टेज से, तो चलो देखिए फिगर वो इसका फेजर कैसे इंडिकेट करेंगे, ये एक्स वाई। अब यहाँ पे ये तो फेजर हमारा वी वाला फिक्स है एट एन एंगल ओमेगा टी, फेज ओमेगा टी वी फिक्स है, बराबर है। अब करंट लैग्स बिहाइंड, यानी पाई बाई टू जितना कम, पाई बाई टू जितना कम, कम यानी उल्टा, माइनस वाले यूं प्लस करोगे तो आगे बढ़ोगे, 0 से 90 से 180 ऐसे प्लस हो रहे हैं ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फिर बिहाइंड करना है, माइनस करना है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, यानी इससे पाई बाई टू एंगल पे आएगा आई, क्लियर, इससे पाई बाई टू एंगल पे आएगा इन केस ऑफ ओनली इंडक्टर। वोल्टेज वही का वही है, इसमें करंट वाज इन फेज, यहाँ पे करंट वाज लैगिंग बाय पाई बाई टू, ये दोनों के बीच का एंगल पाई बाई टू हो गया, तो यहाँ करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज इन फेज बाय पाई बाई टू रेडियन। गॉट इट? ये हो गया ओनली इंडक्टर वाला केस। तो आई सपोज के ओनली कैपेसिटर वाले केस तो आपको इजीली जज हो जाएगा क्या करना है। ओनली कैपेसिटर वाले केस में V तो वही का वही, देखो V हमारे लिए रेफरेंस है अभी फिलहाल, रेफरेंस जो है उसको फिक्स रखने का, दूसरी क्वांटिटी उसके हिसाब से आगे पीछे रहेगी। हियर I इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, वेयर आई एम का वैल्यू Vm अपॉन 1 बाय ओमेगा सी, यानी एक्स ही हो गया। ओके, इसको लिखेंगे Vm बाय एक्स आई, इसको लिखेंगे Vm बाय एक्स सी। देखो तीनों Vm बाय आर, Vm बाय एक्सएल, Vm बाय एक्सए, एक्सएल ने इसने जो रेजिस्टेंस ऑफर किया, इसने एक्सी यानी कैपेसिटर ने जो रेजिस्टेंस ऑफर किया वो। हाँ, यहाँ पे एक बात नोट करते हैं, हियर करंट का फेज आता है, इससे करंट लीड्स वोल्टेज, करंट लीड्स वोल्टेज इन फेज बाय पाई बाई टू रेडियन, यानी वोल्टेज से पाई बाई टू जितना फेज ज्यादा रहेगा उसका, तो फिर मेरे ख्याल से फिगर जज हो गया ना क्या करना है। ओके, सो हियर विल बी लाइक दिस, या एक्स वाई, वोल्टेज हमारा फिक्स V एट एन एंगल ओमेगा टी, फेज ओमेगा टी उसका, बराबर है। अब करंट इन केस ऑफ ओनली कैपेसिटर लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाई टू रेडियन, पाई बाई टू रेडियन जितना आ गया, ये करंट इन केस ऑफ IC हो गया पाई बाई टू जितना आ गया, क्लियर। ये हो गया हाउ वी रिप्रेजेंट वोल्टेज इन करंट इन केस ऑफ ओनली R, ओनली C, L एंड ओनली C, ये तीनों केस आ गए यहाँ पे, ये फेजर है। तो मतलब इसका यूज क्या है, इसको सर्किट को एनालाइज करने के लिए V and I की जरूरत पड़ती है, तो वी कैन गेट द रिलेशन इन V and I यूजिंग दिस फिगर वेरी इजीली, ये फेजर डायग्राम से ज्यादा इजीली पता लगेगा। अब तो बोला इसमें रिलेशन तो हमारे पास ऑलरेडी था, तो इसमें करना क्या है, तो हम अगली जो सर्किट लेने वाले हैं LCR इन सीरीज, उस केस में एक मेथड लेंगे फेजर का एनालाइज करने के लिए, एंड दूसरा मेथड लेंगे एनालिटिकल यानी कि मैथमेटिकली। दोनों को कंपेयर करना तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी मेथड ज्यादा इजी है, कौन सी ज्यादा बेटर है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट विद LCR सर्किट।